read that line. This, however, was bound to happen so that what is written in their law may come true. They hated me for no reason at all. That's enough. They hated me for no reason at all. बगैर किसी कारण के मुझसे घृणा करते रहे। The first part says, if they hated me, पहले भाग में क्या पढ़ा हमने? यदि उन्होंने मुझसे घृणा की, they will hate you also. तो वो आपसे भी घृणा करेंगे, तुमसे भी घृणा If they करेंगे। hated Jesus for no reason, यदि प्रभु यीशु मसीह को बगैर किसी कारण के उन्होंने घृणा की, they will hate us too. तो वो हमसे भी घृणा करेंगे। The first verse we read was about prayer. We'll come to that at the end. पहला जो परिच्छेद हमने पढ़ा वो प्रार्थना के विषय में था, बाद में हम फिर से उस पर आएंगे। How many of you know what culture is? आप में से कितने लोग जानते हैं कि संस्कृति क्या होती है? Since we heard about time management, let's go forward. तो आइए जल्दी आगे बढ़ें, समय के पाबंद बने। Every minute is precious, right? हर एक लम्हा महत्वपूर्ण है। Sentence have really scared me. He's saying successful people get up at 4 o'clock. सिमरन सर ने डरा दिया, बोलते सफल लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। I wake up at 4 o'clock and turn around and sleep. 4 बजे उठ करके पलट कर फिर सो जाता हूँ। Somebody was saying if God has to show me sunrise, he has to put it at 11 o'clock. किसी ने कहा यदि परमेश्वर को मुझे सूरज उगता हुआ दिखाना है तो उसे 11 बजे उगाना पड़ेगा। Culture has two meanings. तो संस्कृति के दो अर्थ हैं। We are focusing on the second one. हम दूसरे पर जोर देंगे। The ideas, customs and social behavior of a particular people or society. एक विशेष समाज या व्यक्ति के व्यवहार, विचार, उनकी परंपराएं, उनके सामाजिक आचरण। That includes your dress codes. जिसके अंदर आपके परिधान, That includes your food habits. जिसके अंदर आपके भोजन करने की शैली, The words we use. जिस शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। In general, our behavior सामान्य तौर की बात कहें तो हमारा आचरण, and our pattern of life. हमारे जीवन की शैली, All this form together to be called culture. ये सारी बातें मिलकर संस्कृति को जन्म देती है। Like for example, it's Goan culture for men to wear bermudas and do official work. It's fine. यदि गोवा की बात करें, वहाँ की संस्कृति ऐसी है कि जो पुरुष हैं वो बलमुड़ा पहन करके या हाफ पैंट पहन करके ऑफिस के काम करते हैं। Now, I'm not saying they go for work on bermudas. मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बलमुड़े में पहनकर अपने पेशे के लिए, अपने नौकरी के लिए जाते हैं। But they could very easily walk into a bank and do their works and come back home without formally getting dressed. लेकिन बगैर विशेष तौर पर जो कपड़े पूरे पहने वो उसके द्वारा ही जाकर अपने काम को बाहर कर सकते हैं। Or it's the culture of some places. For example, here we have a boys section and a girls section. जैसे यहाँ पर ये संस्कृति है कि बहनों का एक बैठने का स्थान है, भाइयों का दूसरा स्थान है। There are cultural reasons for that. इसके पीछे सांस्कृतिक कारण है। If you come to our church, यदि आप हमारी कलीसिया में आते हैं, we wouldn't think of it that way. हम इस तरह से नहीं सोचते। Food habits, खाना खाने का तरीका, kind of the time to sleep, getting up, there are lots of cultural stuff that we do every day. सोने का समय और कई ऐसी सांस्कृतिक बातें हैं जो हम प्रतिदिन अनुकरण करते हैं। We all live in a culture. हम ऐसी संस्कृति में जीते हैं। Now the problem today is, और आज जो समस्या हमारे सामने आती है, I shouldn't say problem, the peculiarity of our globe today is, और समस्या नहीं कहना चाहूंगा, आप कह सकते हैं हमारे इस दुनिया की विशिष्टता, barriers are being broken down और जो हमारे सामने जो अवरोध हैं वो टूट रहे हैं because of fast communication. और यह बड़ी रफ्तार से जो संचार संप्रेषण बन रहा है उसकी वजह से। There was a clear dichotomy between east and west in the old यदि आप days. पुराने दिनों की बात करें, पश्चिम और पूर्वी देशों में विभाजन पाया जाता था। Well, there still is a difference between east and west. लेकिन बात करें तो आज भी स्वाभाविक तौर पर पश्चिम और पूर्व में भिन्नताएं हैं। But because of the internet and television and the communication facilities, borders are becoming blurred. They call it the global village, right? आप देख सकते हैं संचार की जो गति बढ़ी है, इंटरनेट हमारे पास आया है और संप्रेषण है, इसकी वजह से जो हमारे दायरे और सीमाएं हैं वो घटती जा रही है, या आप कह सकते हैं एक दुनिया गांव के रूप में जो विश्व गांव है उसमें परिणित हो रही है। Of course, there are good sides, good things, because we are living in a global village. और जबकि हम एक विश्व गांव में जी रहे हैं, इसके लिए बहुत से हमारे फायदे भी हैं, अच्छी बात है। For example, when I'm doing research in philosophy, उदाहरण के लिए जब मैं दर्शन शास्त्र में शोध कर रहा हूँ, I can communicate with a scholar in Stanford University, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पंडित है मैं उनसे संचार कर सकता हूँ, which older generation could never imagine. और जो
पूर्व समय की पीढ़ी थी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। We can exchange information. हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। But the problem is that there is a good side, there is also a dangerous side. ये तो बहुत अच्छी बात है, भली बात है, लेकिन इसके पीछे एक जोखिम भी है। For example, the S word. उदाहरण के लिए जो S शब्द है, Now, of course, a four-letter word, we all know it's a bad word. और 4 जो अक्षर का जो शब्द है वो बहुत बुरा है, हमें पता है। But the S word is also an ugly word. You shouldn't use it publicly. लेकिन जो S शब्द है वो भी गलत है, सार्वजनिक रूप से आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। But our kids, in our campuses, they think S word is a cool word. लेकिन हमारे कैंपस की बात करें, हमारे बच्चों की बात करें, उन्हें लगता है S जो शब्द है वो अच्छा है। Now, instead of saying, if you hit your leg, instead of saying ouch, they would use the S word. और यदि आपको पैर कहीं चोट लग जाती है, आप बोलते हैं आ, लेकिन वो तो बोलेंगे S जो शब्द है उसका इस्तेमाल करेंगे। So that is the bad side of that. Just a small example of what this global village has done to our hearts. ये बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बताना चाहेंगे आपको कि ये जो दुनिया एक गांव के रूप में बदल रही है उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ा है। There are some very serious things that are happening in the world, कुछ बहुत ही गंभीर बातें हैं जो अब दुनिया में चल रही हैं, which you need to be aware of and which you need to be prepared. जो आपको समझना है और अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। Do you love ICPF camps? क्या आपको ICPF के कैंप पसंद है? Because by the grace of God, the leaders are enabled to give you a complete package. लेकिन परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया हो कि जो अगुवे हैं पूर्णतः आपको सारी बातों को देने में सक्षम हैं। This is called the whole counsel of God. This is called the whole counsel of God. इसे आप परमेश्वर की पूरी सभा कह सकते No, हैं। I'm not saying this is exhaustive. There's a lot more to study in the Word of मैं God. ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ आपको जो मिला है पर्याप्त है, इससे ज्यादा बातें परमेश्वर के वचन में सीखने के लिए रखी है। But we will not let you go without giving you at least the basic essentials for Christian life at your age. लेकिन इस उम्र में जो आपकी उम्र है, आपको मसीह जीवन की बुनियादी बातों को दिए बगैर आपको यहाँ से नहीं भेजेंगे। So, because transformation has to reflect in your behavior, in your daily life, very, very practically. क्योंकि जो रूपांतरण है, जो परिवर्तन है, आपके दिन प्रतिदिन की चर्या में, आपके प्रतिदिन के जीवन में प्रतिबिंबित होना चाहिए। The tears that we shed here in the presence of the Lord जो आंसुएं आपने यहाँ परमेश्वर की हुजूरी में बहाए, will become your glucose, will become your strength when you face the heat outside. और जब बाहर की आप गर्मी का एहसास करेंगे, ये आपके लिए ऊर्जा बन जाएगी। And you continue to depend on God and live your life 365 days a year. अब पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित होकर के एक वर्ष के 365 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे। And we need to be people who are aware of what is happening. हमें ऐसे लोग बनना है जिन्हें जो कुछ हमारे चारों ओर चल रहा है उसकी पूरी जानकारी हो। I heard a preacher once say, I'll give you another example. I did a television program on the Da Vinci Code, if you remember. I don't know if you remember the novel and the movie, the Da Vinci Code. और जो उपन्यास लिखा गया दा विंची कोड के ऊपर, आपको मालूम होगा, उसके ऊपर टेलीविजन प्रोग्राम करने का मुझे अवसर मिला। So after this program, a preacher called me at night. इस कार्यक्रम के बाद एक प्रचारक ने मुझे रात में बुलाया, And he was very mad. और वो मानो एकदम पागलों सा हो गया He था। was so angry at me and he मुझ said, पर बहुत क्रोधित था। all through your talk, उसने कहा अपने पूरे इन बातों की चर्चा के दौरान you spoke about Da Vinci. आप दा विंची के बारे में बात You करते are a हैं। preacher and you are talking about Da Vinci. आप प्रचारक हैं और आप दा विंची के बारे में बातें कर रहे हैं। You should talk about Jesus and Jesus alone. और आपको यीशु और यीशु के बारे में ही बात करना है। I thought, yeah, I can do that. मैंने कहा हाँ, ऐसा कर सकता हूँ। But if somebody comes and says, Jesus got married and he had children, what do I do? लेकिन यदि कोई आकर मुझसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शादी की, उसके बच्चे भी हुए, तब मैं क्या करूँगा? Shouldn't I give an answer? क्या मुझे उनको उत्तर नहीं देना है? I said, sir, that's what I was doing. तो मैंने कहा वही तो मैं कर रहा था। He said, how many people read that novel? उन्होंने कहा कि उस उपन्यास को कितने लोगों ने पढ़ा? I said, millions. मैंने कहा लाखों लोगों ने। He said, very few people read it. And that means he didn't read it. He has no idea what it is. उन्होंने कहा मुझे लगा बहुत से थोड़े लोगों ने पढ़ा क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम था कि क्या लिखा है, क्योंकि उसने खुद ही नहीं पढ़ा। That man of God was disconnected from the happenings around him. क्योंकि यह परमेश्वर का जो जग है उसके चारों तरफ क्या चल रहा है उसे मालूम ही नहीं था। See, I am 42. मैं 42 वर्ष का हूँ। Even, suppose God gives me 80. अगर परमेश्वर मुझे 80 वर्ष की
उम्र देते Till हैं। my last breath, this is my dream. मेरे अंतिम सांस तक ये मेरा सपना है। I want to be aware of what is happening in the world दुनिया में क्या हो रहा है मैं उसकी जानकारी रखना चाहता हूँ, because the message doesn't change, क्योंकि संदेश नहीं बदलता, but the receivers are changing. लेकिन प्राप्तकर्ता बदल जाते हैं, श्रोता बदल जाते हैं। Without changing the message, we have to address the audience. हम संदेश को नहीं बदल रहे परंतु श्रोताओं को हमें संबोधित करना है। That's why we are training you here. यही इसीलिए हम आपको यहाँ पर प्रशिक्षित कर रहे The हैं। first thing you need to remember is there is an anti-Christian mood in the world. पहली बात आपको याद रखना है कि दुनिया में मसीही विरोधी बढ़ रहे हैं, मसीह का विरोध किया जा रहा है। Listen to the words of Bertrand Russell, the old philosopher. बर्ट्रैंड रसल जो एक पुराने दर्शन शास्त्री हैं, उनकी बातों को सुनिए। He audaciously said this: science can teach us, and I think our own hearts can teach us, no longer to look around for imaginary supports, no longer to invent allies in the sky, but rather to look to our own efforts here below to make this world a fit place to live in, instead of the sort of place that the churches in all these centuries have made it. You know, it's hard to translate. Don't worry about the whole sentence. Yeah, just simplify and give one line. आप देख सकते हैं बर्ट्रैंड रसल ने ऐसा कहा कि हम अपने दुनिया का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलीसियाएं किन बातों को बता रही है, धर्म किन बातों को बता रहे हैं, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं। अपनी खुद की बुद्धि, ज्ञान, तकनीक से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। Too many things have happened after Bertrand Russell. बर्ट्रैंड रसल के बाद बहुत सारी बातों में परिवर्तन आया। Science had taken over the world, and it's still taking over we still live under science, but we live in a time where people do not look at science for solution, they look at religion for solution. So the problem is that religion and science are extremely compartmentalized. तो आप देख सकते हैं बर्ट्रैंड रसल की बात, बहुत सारी बातें बीती, विज्ञान ने संप्रभुता किया, बहुत सारी बातों में बदला, लेकिन अब भी आप देखते हैं जब लोगों के पास समस्याएं आती है, वो विज्ञान के पास ही नहीं जाते परंतु धर्म के पास भी जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं। इसका मतलब ये कि आज के युग में धर्म और विज्ञान को विभाजित कर दिया गया है। Now, only Christianity has a problem with that. केवल मसीहन को इससे समस्या है। Our Hindu friends will not take their temple stuff or their faith into the science classroom. और हमारा जो मित्र है, हमारा शिक्षक है, अपनी जो हिंदू भाई है, वो अपनी मंदिर की विश्वास को, वहाँ की पूजाओं को वह कक्षा में लेकर नहीं जाएगा। But we cannot detach our salvation and our Savior from any discipline that we are doing during the week. लेकिन हम मसीह होने के नाते अपने उद्धार को और अपने उद्धारकर्ता को अपने दिन भर की बातों से या अपने हफ्ता में चलने वाली कक्षाओं से अलग करके नहीं रख सकते। One of the founding fathers of America said this. और न्यूमेरिक के एक जो फाउंडिंग फादर है थॉमस पेन, उन्होंने ये कहा, The Christian religion is a parody on the worship of the sun, in which they put a man whom they call Christ in the place of the sun and pay him the same adoration which was originally paid to the sun. इन्होंने थॉमस पेन ने ऐसा कहा कि मसीह कुछ और नहीं परंतु एक सूर्य की पूजा है, जिसमें उन्होंने सूर्य के स्थान पर प्रभु यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति को रख दिया और उसकी उपासना करते हैं। Now these are older fellows. Now here is a new one. ये पहले जो बताया वो बहुत ही बुजुर्ग लोग थे, लेकिन अब ये नया व्यक्ति है। I don't know if you have heard his name. यदि आपने इसका नाम सुना है कि नहीं मुझे Now नहीं पता। believe me, his books are translated even to Malayalam. मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी किताबें इतनी प्रसिद्ध है कि मलयालम भाषा में भी उनका अनुवाद किया गया है। The God Delusion is translated to Malayalam and propagated by the communists in Kerala. गॉड डिल्यूजन की यदि आप बात करें, जो कम्युनिस्ट पार्टी केरल में पाई जाती है, उनके द्वारा अनुवाद करके लोगों को दिया गया है। He is an Oxford scientist. ये ऑक्सफोर्ड के एक वैज्ञानिक है। Now, there is a response that is written called the Dawkins Delusion by another scholar from the same university. और उसी विद्यालय से एक और पंडित के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था डार्विन डिल्यूशन, मतलब डार्विन का भ्रम। No, Dawkins Delusion. डॉकिंस डिल्यूशन मतलब डॉकिंस का भ्रम। Okay, what does he say? The idea that God could only forgive our sins by having his son tortured to death as a scapegoat is surely, from an objective point of view, a deeply unpleasant idea. If God wanted to forgive us our sins, why didn't he just forgive them? Why did he have to have his son tortured? ये ऐसा कहते हैं, यदि परमेश्वर जो इतना महान अनुग्रही है, यदि हमें माफ करना चाहता तो अपने बेटे को इतनी बुरी तरह तड़पा के मारने की आवश्यकता क्यों थी? वो चाहता तो हमें यूं ही माफ कर सकता था।
Okay, and then Daniel Dennett, another philosopher, is saying we have to believe in evolution, and that's it. If you question evolution, which is not proved yet, you are an ignorant person. और डैनियल डेनेट जो दूसरे एक दर्शन शास्त्री वो भी कहते हैं कि आप जो विकासवाद है इवोल्यूशन उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते, आपको इस पर विश्वास करना ही है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप अज्ञानी हैं। You know, the problem is very real. आपको पता है जो समस्या वो बहुत ही वास्तविक है। It's not an anti-religious world. It is an anti-Christian world we are living in. यह धर्म विरोधी दुनिया नहीं है, यह मसीही विरोधी दुनिया है जिसमें आप और हम जी रहे हैं। You know, one young scholar wrote a thesis on Trinity. एक जवान शोधकर्ता ने पंडित ने एक शोध लिखा जिसका शीर्षक ट्रिनिटी त्रिएक परमेश्वरत्व के ऊपर था। And one of the universities, either it was Harvard or Yale, one of those famous universities, he presented it for doctorate. अब मुझे याद नहीं है ये शायद हार्वर्ड है या येल है, वहां पे उसने जाकर अपने शोध के इस पत्र को उसने वहां प्रस्तुत किया। And the scholars who analyzed this thesis, they all said this is excellent. और जो वहां के पंडितों ने जिन्होंने इसका अवलोकन किया उन्होंने कहा ये बहुत ही उत्कृष्ट शोध है। And they said we will give you the doctorate but we cannot publish this paper. उन्होंने ये कहा कि हम आपको पंडिताई की उपाधि दे देंगे लेकिन आपके शोध को हम प्रकाशित नहीं करेंगे। You know what the reason they gave? आपको पता है इसका कारण क्या है? Because God is addressed as He. क्योंकि वहां पर God is addressed as He, and this is gender insensitive. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर को जब अंग्रेजी में आप देखते हैं हम के लिए हम ही और शी यूज करते हैं, जबकि उसने ही का उपयोग किया है जो एक प्रकार से लिंग भेद को दर्शाता है, हम इसे प्रकाशित नहीं कर सकते। We'll come to the gender issues later. और जो लिंग भेद की मुद्दे हैं हम उसमें बात Keep this in करेंगे। mind. उसने उसकी परवाह नहीं, Whether it's east or west, चाहे वो पश्चिमी हो या पूर्वी हो, whether it's the scholarly people or the normal man. चाहे ये कहना चाहिए पंडित या फिर पढ़े लिखे विद्वान हो या औसतन व्यक्ति हो, We are under attack. हम आक्रमण के अंतर्गत पाए And there जाते is a हैं। strong anti-Christian mood in the world. और दुनिया में आप देखें तो मसीही विरोधी एक भाव पैदा हुआ है। The second problem we need to face is दूसरी समस्या जिसका हमें सामना करना है, we are living in an amoral campus. हम नैतिक समाज में जी रहे हैं। Now this is not immoral. यह अनैतिक नहीं है, This is neither moral or immoral. आप इसे अनैतिक भी नहीं कह सकते, आप इसे नैतिक भी नहीं कह सकते। Which means lacking a moral sense, unconcerned with the rightness or wrongness of something. इसका मतलब नैतिक ज्ञान का अभाव और सही और गलत क्या है उसकी चिंता ना करना। Now there are some things that are neither right nor wrong. और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप देख सकते हैं वो ना ही गलत है और ना ही सही है। For example, I love tea. मान लीजिए मुझे चाय पसंद है My brother might love coffee. और जो मेरे भाई है उन्हें शायद कॉफी That पसंद is है। an amoral issue. यह तो एक कहना चाहिए नीम नैतिक मुद्दा है। There is nothing more right in me to drink tea than for him to drink coffee. तो इनके लिए चाय पीना कोई नैतिक बात नहीं है और मेरे लिए चाय न पीना अनैतिक बात नहीं है। It's not a deeply philosophical issue. यह दर्शन शास्त्रीय मुद्दा नहीं है। But the reason I'm saying that the campus that you're going to go to or you're already in, the university campuses, the school campuses, the college campuses, there is a strong spirit of amorality because Satan has bound the mind to not to recognize what is right and wrong. आपको बताना चाहूंगा जिस विद्यालय में आप जाएंगे, जिस शाला में आप जाएंगे, जिस स्थानों में आप पढ़ने के लिए जाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए शैतान ने लोगों के दिमाग को ऐसा बांध दिया है कि वो नीम नैतिक विचार को रखने वाले बन गए हैं। And the term you will keep hearing is tolerance. और जो शब्द आप बारंबार सुनने का आपको मौका मिलेगा वो है अनुदारता। I remember speaking in a camp in Bangalore, and the camp center belonged to a Catholic institution, and they had the Om symbol, the cross, and what's the Muslim symbol? क्रिसेंट, The crescent. क्रिसेंट। The crescent all together. आप देख सकते हैं बैंगलोर में मेरे को मौका मिला एक कैथलिक वहां पर जाने का और मैंने वहां पर देखा कि तीनों धर्म के हिंदू, ईसाई और मुसलमान उनकी जो चिन्ह है उसको उन्होंने वहां पर लगा करके रखा है। What does that mean? इसका मतलब क्या है? What they're trying to say is that oh, we are so tolerant. वो ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा अनुदार हैं। But tolerance simply means we are scared to address what is right
and what is wrong. लेकिन उदारता का मतलब ये है कि हम परवाह नहीं करते सही क्या है गलत क्या है, हम अपने हाल में रहते हैं, We don't care about the truth. हम सत्य की परवाह नहीं करते। What did this fellow say? अब ये व्यक्ति क्या कहते हैं? Tolerance, intercultural dialogue, and respect for diversity are more essential than ever in a world where people are becoming more and more closely interconnected. आप देख सकते हैं दुनिया में सारी बातें इतनी बढ़ रही है, सांस्कृतिक तौर पर लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, लोगों के अंदर उदारता उत्पन्न हो रही है, ये दुनिया अपने आप में आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ रही है। Sounds very noble. और इसको सुनने में बहुत ही नेक लगता है। Now, maybe his intention is to say that we shouldn't have discrimination in the world. हो सकता है उनके कहने का मतलब ये हो कि दुनिया में हमारे बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। If somebody is denied basic privileges simply because he is a Christian or simply because he is a Hindu, that is wrong. अब यदि कोई केवल मसीही होने के नाते या हिंदू होने के नाते उनकी बुनियादी अधिकारों का हनन किया जाता है तो ये गलत है। But your right to live as a Christian, when that is questioned in the name of tolerance, लेकिन इस उदारता के नाम पर आपके मसीही होने का अधिकार का यदि हनन किया जाता है then we have a problem. तब हमें समस्या होनी चाहिए। Listen to what good old Reagan said. ये रेगन क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान दें इस बात पर। The frustrating thing is that those who are attacking religion claim that they are doing it in the name of tolerance, freedom, and open-mindedness. Question: is it the real truth that they are intolerant of religion? They refuse to tolerate its importance in our life. आप देखिए ये इस बात को कहते हैं कि ये बड़ी उदासी की बात है कि लोग धर्म के नाम पर उदारता, आजादी और खुले दिमाग और विचार का प्रचार करते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है जब वो उदारता की बात कह रहे हैं और धर्म के विरुद्ध में बोल रहे हैं तो क्या ये सचमुच उदारता को दर्शाता है? Now he was talking against atheists. अब देखिए ये जो नास्तिक हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। What he actually meant was that you are opposing Christianity in the name of tolerance. वो ये कह रहे हैं कि तुम उदारता के नाम पर तुम मसीहत का इनकार कर रहे हो। You know, I remember when recently, just 2 or 3 years ago, Goa State Library, they renovated it and made it big. अब मुझे याद आता है हाल की बात है, गोवा स्टेट लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है उसका पुनः निर्माण किया गया, उसे और बेहतर बनाया गया। So they dismantled the old building and they built this huge building, and all of a sudden they found that the number of books they have is much shorter than the size of the shelves they had. और फिर उन्हें मालूम चला जब सारी पूरी इमारतों को ढांकर उन्होंने नया पूरा इमारत बनाया, उन्हें मालूम चला कि जितने सेल्फ उनके पास हैं उससे कम उनके पास किताबें हैं। So then they started opening it up like, we can contribute books, your old books, you could just give it out. फिर उन्होंने ये बोला कि यदि आपके पास पुरानी किताबें हैं आप उसे दान कर सकते हैं ताकि पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें हो। So I took it as an opportunity, and I brought all my old books, theology books and gospel books written by big scholars, and gave it to them. अब मुझे फिर ये सौभाग्य के रूप में लगा और मैंने इसका इस्तेमाल करते हुए सारे धर्म विज्ञान की किताबें जो पंडितों के द्वारा विद्वानों द्वारा लिखा गया है, सुसमाचार की पुस्तकें सब मैं लेकर के I आया। don't think they understood the danger behind it. They just stamped and put it on the shelf, so anybody can now today go to Goa State Library and pull out a C.S. Lewis book or a Ravi Zacharias book. अब मुझे ये नहीं पता कि क्या उन्हें इसके खतरे के बारे में मालूम था, लेकिन उन्होंने सब ले लिया, सील मारा, उसे रख दिया। और आप कोई भी यदि गोवा के पुस्तकालय में जाएगा तो रवि ज़करियास का बुक हो या C.S. लुईस की बुक हो वो लेकर के पढ़ सकता है। 1 year later, I went there 1 वर्ष के बाद मैं वहां गया with more books. और किताबें लेकर गया। By then, they had filled the shelves. तब तक तो सारे शेल्फ्स में उनके भर चुके थे। So the lady asked, "What kind of books are these?" तो उस स्त्री ने पूछा किस प्रकार की किताबें हैं? I said, "Scholarly books." मैंने कहा पंडितों की पुस्तक है। And then she didn't quite understand. She asked me, "What kind of books are these?" फिर उनको समझ में नहीं आया, फिर से वो पूछती है किस प्रकार की किताबें हैं बताओ। And I said, "We are Christian books." मैंने कहा मसीह की पुस्तकें हैं। And you should have seen the change on her face. और आपको उनके चेहरे में आई भिन्नता की प्रतिक्रिया को देखना था। It was like when you tell your 7-year-old boy, "Let's go to the dentist." और ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे अपने 7 साल के बेटे को आप बोलते हैं आओ डेंटिस्ट के पास चले। Oh, my teeth have no problem. ओह मेरे दांत उसमें कोई दिक्कत नहीं है। We have a dentist. His dentist name, my son's dentist name is Dr. Paul. और हमारा एक है अपना घर का डेंटिस्ट है हमारे, I use his उसका name. नाम डॉक्टर पॉल I है। use his name all the time for the evening brushing time. You हमें- don't brush tonight, tomorrow Dr. Paul. हमेशा शाम को ब्रश करते हैं, तुम आज रात में ब्रश नहीं करोगे बेटे कल तुम्हें डॉक्टर पॉल के पास जाना You should see पड़ेगा। how fast he'll brush. वो बहुत तेजी से ब्रश करता है। So anyway, I mean, you could see it on her face. उनके And the चेहरे- moment you said these are Christian books,
जिस घड़ी आपने कहा ये मसीह किताबें हैं, चेहरे का भाव बदल गया। As if I was going to plant a bomb in that. उन्हें ऐसा लगा मानो उस किताब के द्वारा मैं बम लगाने वाला हूं उनकी पुस्तकालय में। Our own dear Gandhiji said this. और गांधी जी ने इस प्रकार से कहा, I don't think you can read it. Let me read for you. I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stifled. I want all the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवार खड़े हो जाएं या उनके चारों ओर खिड़कियों को बंद कर दिया जाए, परंतु मैं ये चाहता हूं कि सारी संस्कृति के लोग, सारी भूमि के लोग मेरे ओर अपनी दिशा को करें, हमारे बीच में कोई भी अवरोध ना रहने पाए। So sweet. बहुत ही मीठा, No walls, कोई दीवार नहीं, no windows. कोई खिड़कियां नहीं, Leave it open. इन्हें खुला छोड़ दे, Let the dogs come in. कुत्ते अंदर आने पाए। Would you do it practically? व्यवहारिक तौर पर क्या आप ये करेंगे? Are we tolerant when it comes to our safety? जब हमारी सुरक्षा की बात आती है, क्या हम उदार बने रहते हैं? Then talk about tolerance by sacrificing truth. और सत्य को कुर्बान कर आप क्या उदारता को स्वीकार करेंगे? You can say all these things. ये सारी बातें आप चाहे तो कह सकते हैं, But in practical life, even Gandhiji must have locked his door. लेकिन व्यवहारिक तौर पर बात करें तो गांधी जी ने भी अपना दरवाजा जरूर बंद किया होगा। Leave it open. Leave it open. Let everything come in. खुला छोड़ दे, सारी बातों को अंदर आने दे। And somebody would come with bombs strapped around them and saying, "My God tells me to blow you up." और फिर एक व्यक्ति अपने सीने पे बम लगा के आ जाता है और बोलता है कि मेरे ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें बम से उड़ाना है। What did he say? "Come on in, brother. Blow me up." तो आप क्या बोलेंगे? अरे अंदर आ जाओ, उड़ा लो मुझे। Somebody else would come and say, "My guru told me to sacrifice you." और फिर दूसरा आकर कहता है कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हें बलि चढ़ा देंगे। Come on in. अंदर आ जाओ। Are you going to sacrifice me now or after dinner? क्या मुझे आप अभी बलि चढ़ाओगे या रात्रि के भोजन के बाद? These are all sweet words. ये सब मीठे शब्द हैं। Political correctness. और राजनीतिक तौर Another पर big word. सिद्धता एक और बड़ा शब्द आप देख सकते हैं। We all want to be politically correct. हम राजनीतिक तौर पर सही होना चाहते हैं। Now, this is where East and West would have this union again. आप देख सकते हैं पूर्व और पश्चिम में यहीं पर आप That man on the left, जो दाईं ओर व्यक्ति है, believe me, he's a Christian. Yes, Dr. Ernestine. Yeah, oh wow. वह मसीही है। That He man is- lives in a forest. All members live in a forest, and they make I don't know the sound, but they sound like a dove. Okay. And it's also a TV program. Yes. So he couldn't continue the TV program because he said gays won't get into heaven. Okay, the man on the right, who is it? Yeah, what's his name? Ahmadinejad. Yeah, I don't know. ईरान के प्रेसिडेंट है, पूर्व प्रेसिडेंट है। What did he say? Gays have to be hanged, beheaded, stoned, and burned alive. And he got an invitation to speak in Columbia University. और देखिए उन्होंने कहा कि जो समलैंगिक है उन्हें स्वर्ग नहीं जाएंगे। Political correctness is not applicable to Christians. और जो राजनीतिक तौर पर सही बातें हैं वह मसीहों के When लिए, it comes to Christians, there is no tolerance. जब मसीहों की बात आती है तो वहां पर कोई भी उदारता नहीं दिखाता। We live in an amoral campus. हम नैतिक विद्यालयों में रहते हैं In the name of tolerance and political correctness, और उदारता और राजनीतिक सिद्धता के नाम पर truth is sacrificed. सत्य को बलि चढ़ा दी जाती है। Now, you can't read this, but just keep this in mind. Oxford University came up with a new rule. आप देख सकते हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन ध्यान में रखें मैं क्या बता रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक नए कायदे कानून को बनाया। Now, you don't even try to read it. I'll explain what it is. आप पढ़े ना, मैं व्याख्या करूँगा ये क्या है। Oxford University came with this new rule. In the classrooms, you are not supposed to address students as he or she. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसा नियम निकाला, कक्षा के अंदर आप किसी को ही और शी कह के नहीं पुकार सकते। Because there could be a third gender, there could be a transvestite, there could be a boy who's dressed like a girl who's dressed like a boy, and somebody would get offended. क्योंकि वहाँ पर तीसरा लिंग भी हो सकता है, एक लड़का जो लड़की के कपड़े में हो, एक लड़की जो लड़के के कपड़े में हो, या कोई और हो सकता है, तो उन्हें नाराजगी होगी। Okay, you can discuss it later. आप चाहें तो बाद में चर्चा कर सकते हैं। So what pronoun would you use? It. तो आप किस उपनाम का, सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे? आप क्या इट बोलेंगे? So they came up with a new pronoun.
तो एक नया सर्वनाम उन्होंने निकाला It's called Z. जिसे वो जी कहते हैं, Z-E. ZE। So, let me give you an example. Z is a good student. जी एक अच्छा विद्यार्थी है, Z looks happy. जी खुश दिखाई दे रही है, Ridiculous, no? बहुत हास्यास्पद है। Ridiculous. Okay. So the first one is, what is the first one? We live in an anti-Christian world. हम मसीही विरोधी दुनिया में जी रहे हैं। The second one is you are studying in an amoral campus. There is a lot हम of नैतिक tolerance. विद्यालय में है, There is a lot of political correctness. राजनीतिक सिद्धता पाई जाती है। Okay, and the third one, अगली बात आप देखते हैं, LGBT is the coolest thing in town. और LGBT आप देखते हैं जो सबसे अच्छी बात है। Everybody wants to fight for LGBT. हर एक जो है इन LGBT के लिए झगड़ा करना चाहता है। Sorry if you are a man or a woman. यदि आप एक स्त्री या पुरुष हैं तो मुझे माफ कर दें। There is nothing normal in discussion on CNN. CNN में एक चर्चा चल रही थी And believe me, CNN is one of the funniest channels you can ever watch. और सबसे मजाकिया चैनलों में एक CNN है। Don't watch comedy shows, please. Just watch CNN. आप कॉमेडी शो ना देखिए, बस CNN खोल लें। The way they were promoting Hillary Clinton, for example. जिस रीति से वो हिलरी क्लिंटन को प्रमोट कर रहे थे, I don't, what is journalism these days? इन दिनों में पत्रकार का कार्य क्या रह गया है? I grew up listening to Pranay Roy and all who would give us information. और प्रणन रॉय और इन सारी बातों को इनके बारे में मैं सुन करके मैं बड़ा हुआ। They didn't try to push anything to us. वो आपको किसी बात के लिए आप पर दबाव नहीं डालते You're थे, supposed to be unbiased. You're supposed to give us the information. और आपको बगैर किसी पक्ष को So लिए anyway, in this discussion, सूचनाओं को देना है। so anyway, in this discussion, इस चर्चा में talking to a Christian leader and talking about marriage. वह मसीह अगुओं से बात कर रहे थे और वो भी विवाह के विषय में बातें कर रहे So थे। this pastor emphatically said, marriage is between a man and a woman. तो इस पासवान ने बड़े दबाव के साथ कहा कि एक विवाह जो है स्त्री और पुरुष के मध्य होना चाहिए। And the host, his name is Don Lemon, और जो मेजबान थे जिनका नाम डॉन लेमन था, he said, marriage is between two human beings. No question about that. उन्होंने ये कहा कि जो विवाह है दो मनुष्यों के बीच में होना चाहिए, उसके विषय में कोई प्रश्न आप नहीं कर सकते। Don't even discuss it. चर्चा भी मत करो। It doesn't have to be between a man and a woman. Just two human एक beings. स्त्री और पुरुष ही होना अनिवार्य नहीं है, दो मनुष्यों के बीच में आप विवाह कर सकते हैं। And I thought, that is discrimination. मैंने कहा ये तो भेदभाव है, Why are you excluding the animals? और आपको जानवरों को निकाल रहे हैं। If somebody is in love with your dog, यदि कोई अपने कुत्ते से प्यार करती है and you're saying you can't marry the और dog, आप यह बोलते हैं कुत्ते से शादी नहीं कर oh my सकती, sweet puppy, I can't marry you. That's discrimination, right? I mean, there are many animal rights people. अब देखिए जानवरों के अधिकार के लिए लड़ने वाले बहुत से लोग हैं। You know, one of the questions American philosophers, Christian philosophers would deal with is, will I be able to take my pet to heaven? अमेरिकी मसीही दर्शन शास्त्री जो बहुत सारे प्रश्नों का सामना करते हैं, उसमें से एक प्रश्न ये है कि क्या मैं अपने पालतू जानवर को स्वर्ग लेकर जा सकता I हूँ? hope that's not one of the questions in the box. मैं आशा करता हूँ कि बॉक्स में आप में से कोई उस प्रश्न को नहीं Because डालेगा, I will deliberately give it to Sinjan sir. क्योंकि ये सारे प्रश्न जो मेरे पास आएंगे मैं सिंजन सर के हाथों में दे दूंगा। Homosexuality is found in over 450 species. Homophobia is found in only one. Now, which seems unnatural? Wow. Did you? आप देख सकते हैं जो समलैंगिकता है वो पूरे 450 जातियों में पाई जाती है, लेकिन जो होमोफोबिया या मनुष्यों से डरने का जो भाव है वो केवल एक में पाया जाता Did you है। understand that? क्या आपको ये बात समझ में आई? See, there are lots of animals who do homosexuality, आपको पता है बहुत से जानवर हैं जो समलैंगिक होते हैं, and they don't have any problem. उनके पास कोई समस्या नहीं होती। Only man has homophobia, that's fear of homosexuality. और आप देख सकते हैं मनुष्यों के अंदर ही वो भय जो होमोफोबिया So these people are asking- समलैंगिकों का भय होता है। So these people are basically saying it is unnatural to have any fear about homosexuality. तो ये लोग ये कह रहे हैं कि समलैंगिकता के विरुद्ध में यदि भय आपके अंदर है तो वह अप्राकृतिक है। Again, I saw this in a television discussion. फिर से एक बार एक टेलीविजन की डिस्कशन में मैंने And the hostess was saying exactly the same. और मेजबान बिल्कुल ऐसा ही कह रहे थे। She was talking to a Catholic priest. वह एक कैथलिक पासवान से बात कर रहे थे। She said there are many species who enjoy homosexual relationships. Why do we have a problem? उन्होंने ये कहा कि बहुत से ऐसे
जाति के वर्ग के लोग हैं, जानवर हैं, पशु हैं जो समलैंगिकता का आनंद उठाते हैं, लेकिन हमें क्या दिक्कत हुई? I wish I could walk into the television आज मेरी इच्छा हुई कि अगर मैं चाहता तो and टीवी के ask अंदर her, घुस जाता and ask her this simple question. और उस स्त्री से केवल एक प्रश्न पूछता Among the 450 species, which one is discussing this issue? और 450 जातियों में से कौन सी वो जाति है जो इस मुद्दे के बारे में बात कर रही है? Which one is able to understand this issue? कौन है वो जो इस मुद्दे को समझ पा रही है? Why are we going back to becoming animals, using our rationality, which is the uniqueness human beings have? और जो मनुष्य के पास वो तकनीक है, वह योग्यता है तर्क करने की, उसे लेकर हम फिर से जानवर क्यों बनने जा रहे हैं? What seems unnatural? जो अप्राकृतिक What दिखाई they're देती saying है। is that rationality and thinking capacity is unnatural. वो ये कह रहे हैं कि सोच विचार करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति अप्राकृतिक है। Towards the end of 2016, this 2 weeks ago, Times of India had this one. 16 के अंत में, अब से 2 हफ्ते पहले की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छापा गया। What it said here is, यहाँ पर क्या कहा गया है? it is good news. ये बहुत अच्छी खबर है। Finally, India is growing up. अंततः भारत बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। We are having gender fluidity now. आप देख सकते हैं लिंग का यहाँ पर अस्थिरता या प्रवाह आप देख सकते हैं। I can't read it. What does it say? I had that piece of paper with me. Basically, the message is this. संदेश यहाँ पर ऐसा है, We are no more discriminating transvestites. हम जो ट्रांसवेस्टाइज हैं, जो दूसरे लिंग के लोग हैं, हम उनमें भेदभाव नहीं कर रहे। And one of the largest media houses in our country is saying, oh wow, we have finally grown up. और हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया के जो लोग हैं, पत्रकार, उनमें से जो एक है ऐसा कह रहे हैं कि अब हम विकास कर रहे हैं। So these are 3 main issues or 3 main cultural struggles you will have as a child of God. मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह 3 आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते आज के इस युग में सामना करेंगे। For no particular reason, we are hated. Number कोई 1. विशेष कारण नहीं होगा तो पर भी आपसे घृणा की जाएगी। Number 2, दूसरी बात, truth is sacrificed and you are studying in a campus, you are studying in an environment which is amoral, politically correct. आप सत्य को कुर्बान करना पड़ेगा। आप ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर सारी बातें नीच नैतिक है। And LGBT is glorified. और जो LGBT आप देखते हैं उसे महिमावंत किया जा रहा है। Now, how to be victorious? जयवंत हम इस पर कैसे हो सकते हैं? I can't close in prayer now. प्रार्थना Even के though all the द्वारा problems are not the solution. समाप्त नहीं कर सकता क्योंकि समाधान आपको अब भी नहीं मिला है। Let me run you through the answers. इनके उत्तरों से मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। Write down these verses, please. इन आयतों को आप लिख लें। It has always been an anti-Christian world. यह हमेशा मसीही विरोधी दुनिया रही है। There is nothing new under the sun. सूरज के नीचे कुछ भी नई बात नहीं। If they hated me, they'll hate you also. यदि उन्होंने मुझसे घृणा की, वह तुमसे भी घृणा करेंगे। When did the Lord say that? प्रभु यीशु मसीह ने ये कब कहा? 2000 years ago. 2000 वर्ष पहले। And we are still being hated. और हमें आज भी हमसे घृणा की जा रही है। Remember, love and sacrifice conquered the Roman Empire. याद रखें, प्रेम और बलिदान ने रोमी साम्राज्य पर जय पा लिया। The early Christians were first persecuted by the Jews. और प्राथमिक मसीही को आप जान सकते हैं जिन्हें सबसे पहले यहूदियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। Then all throughout the Roman Empire they were burned alive. और फिर उसके बाद रोमी साम्राज्य के जो सम्राट हैं उनके सामने उन्हें जिंदा जला दिया गया। Thrown to the lions. उन्हें सिंहों के सामने जिंदा फेंक दिया गया। Property were confiscated. और उनकी संपत्ति को उनसे छीन लिया गया, कब्जे में कर लिया गया। If you read the book of Hebrews, you'll get an idea. यदि आप इब्रानी की पुस्तक पढ़ते हैं, आपको ये क्या विचार है समझ में The writer आएगा। of Hebrews is writing to the second generation. आप देख सकते हैं इब्रानी की पत्रिका लेकर दूसरी पीढ़ी को ये सारी बातें लिख रहा Remember the है। days when you gladly let your property be confiscated. याद रखें उस दिन के बारे में जब आपने बड़े आनंद से अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में दे दिया। But eventually, लेकिन अंततः the Roman Empire within the next 2 centuries, लेकिन आने वाले 2 सदियों में जो रोमी सम्राट हैं, in 300 years, 300 वर्षों में it became Christian.
सबके सब मसीही हो गए। That's a transformation of the power of the message we have. और यही जो संदेश है उसकी सामर्थ्य है। Truth and courage brought in the new covenant. सत्य और हिम्मत नई वाचा में आती है। Under the new covenant, नई वाचा के अंतर्गत we are not establishing a physical kingdom here. हम एक भौतिक साम्राज्य की स्थापना नहीं कर रहे। In one way, the kingdom of God is already here. एक रीति से यदि आप बोले तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ चुका है। It is the church. ये कलीसिया है। So remember this. इस बात को याद रखें। Truth and courage. सत्य और जो हिम्मत है, Don't forget. कभी ना भूलें। In the name of love, we will not tolerate everything. प्रेम के नाम पर हम सब कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। We will hold on to the truth. हम सत्य को थामे रहेंगे। God will give you the courage. और परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। You will live in that. You are continuing to live in the anti-Christian world. आप मसीही विरोधी दुनिया में जीते रहेंगे। Conquer them with love. आप प्रेम के द्वारा उन पर जय पाएंगे। Hold on to the truth. सत्य को थाम कर रखेंगे। And God will give you boldness. और परमेश्वर आपको साहस Say this देगा। after me. मेरे पीछे कहें। Conquer them with love. Hold on to the truth. God will give us strength. 2000 years of sacrificial commitment has kept the church alive. 2000 वर्षों के बलिदान और समर्पण की वजह से कलीसिया आज भी जीवित है। So how to be victorious in an anti-Christian world? मसीही विरोधी दुनिया में आप कैसे जयवंत हो सकते हैं? Love the world sacrificially. और इस दुनिया से आप कहना चाहिए कि बलिदान अपने आप को God देते हुए so प्रेम loved करें। the world क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that He gave His only begotten कि Son. उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। We don't love the world in that sense, the sinful part, और जो पापमय पहलू है दुनिया का, हम उससे प्यार नहीं but करते। love the people of the world, including your enemies. लेकिन दुनिया में जो लोग हैं, आपके जो शत्रु हैं, आप उनसे प्यार करें। But hold on to the truth, कि सत्य को थाम कर रखें, and God will give you strength. परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। How to handle the new tolerance and political correctness. और जो उदारता आप देखते हैं, राजनीतिक सिद्धता आप देखते हैं, आप इसका सामना कैसे करेंगे? Be tolerant. आप उदारता बने, उदार बने रहें। When I saw the sign of the cross and the Om and the crescent, I didn't say, I will preach only if you paint it. और जब मैंने मुसलमानों के इस चांद को, मसीहों के क्रूस को और हिंदुओं के ओम को देखा, I didn't say I can preach only if it is removed. अब मैं ये नहीं कहा कि जब आप इसे निकालेंगे मैं तभी प्रचार करूंगा। I preached right under it. और जैसा वो था मैंने वही खड़े होकर प्रचार But I किया। preached only the cross. लेकिन मैंने केवल क्रूस के बारे में प्रचार Be किया। tolerant, आप उदार बने रहें, but be firm. लेकिन स्थिर रहें। Somebody comes and says, कोई आकर आपसे कहता है, Jesus got married and he had children. प्रभु यीशु मसीह ने विवाह किया, उसके बच्चे भी थे। Challenge him in love. प्रेम के द्वारा आप उससे चुनौती दें, Ask him, उससे प्रश्न पूछें। do you consider Dan Brown to be a historian क्या आप डैन ब्राउन जो लेखक है, क्या आप उसे इतिहासकार मानते हैं or a fiction writer? या आप उसे उपन्यास के लेखक मानते हैं? And quote some of the historians I have mentioned in the last class. और गत कक्षा में जिस किसी इतिहासकारों का नाम मैंने आपको दिया है, आप उन्हें बताएं। Just ask them, have you read Marabar Sarapin? They will run away. क्या महाराभा सराफिन क्या आपने पढ़ा है? सुन के ही नाम वो भाग जाएंगे। So what I'm saying is that hold on to the truth. सत्य को थाम कर रखें। Tolerance doesn't mean that you're going to accept what he's saying. उदारता का मतलब ये नहीं कि जो कुछ वो कहते हैं आप उसे स्वीकार कर Number लें। 2, life is to match the words. और जो आपकी जिंदगी है वो वचन से मिलनी चाहिए। After preaching everything 5 days a week, और एक हफ्ते में प्रचार करने के बाद, 5 बार प्रचार करने के बाद, and on Saturday night, if you are going to dance with them, और शनिवार रात को जब आप उनके साथ नाचने को तैयार our हैं, words will not have any power. हमारी शब्दों का उन पर कोई असर नहीं होगा। Words are to match the life. और जो शब्द हैं उनका Life is to match the words, जिंदगी से मेल खाना चाहिए, and words have to match your life. और जिंदगी आपके वचन से, वचन आपकी And जिंदगी let you go home and read those verses. मैं चाहूंगा कि आप उन आयतों को घर जाकर, You cannot be a silent Christian. आप शांत मसीही नहीं बन सकते। You are a good Christian आप अच्छे मसीही हैं who speaks. जो बातें करते हैं। You are a good speaker आप एक अच्छे वक्ता हैं who lives. जो जीता है। See the difference? अब देखिए फर्क कितना है You दोनों should में। live आपको जीना है, and also speak. आपको बोलना है। You should speak, आपको बोलना है, you should also live. आपको जीना है। Okay. Acquire knowledge. और ज्ञान को अर्जित करें। Knowledge is wonderful.
ज्ञान अच्छी बात है There is nothing noble about ignorance. और अज्ञानता के विषय में कोई भी अच्छी बात नहीं। Who is the Prime Minister of India? और भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? I don't know. I know the apostles. अब प्रेरितों को जानता हूँ, वो कौन है मुझे नहीं पता। Who is our finance minister? हमारे अर्थव्यवस्था के मंत्री कौन I है? don't know. I know Solomon, King Solomon. सुलेमान Hallelujah. राजा को जानता हूँ, वो कौन है? Get general knowledge. सामान्य ज्ञान को बढ़ाएं। Be the best in whatever God has given you. जो कुछ भी आप करते हैं, आप उसमें श्रेष्ठ बन जाएं। Acquire knowledge. ज्ञान को अर्जित करें। In other words, don't be dumb. दूसरे शब्दों में कहें तो बेवकूफ ना बने रहें। Don't stand alone. अकेले ना खड़े रहें। I said it before. मैंने पहले भी आपसे कहा, Community is very important. समाज बहुत जरूरी है। You may be alone in the campus. हो सकता है आप अपने विद्यालय में अकेले हों। Make friends in the church. कलीसिया वालों के साथ मित्र बनाएं। No matter how boring they are, परवाह नहीं पड़ता कितने बोरिंग वो हैं। you need Christian friends. आपको मसीही मित्रों की आवश्यकता है। Don't neglect fellowship. आप उनके साथ मित्रता को अनदेखा ना करें, तिरस्कृत ना That's करें। how you handle the amoral campus. बिल्कुल इसी रीति से आप जो नील नैतिक विद्यालय है जहां आप जाते हैं, आप उसका सामना कर पाएंगे। How to handle the LGBT cool stuff. और जो LGBT गेज, बाइसेक्सुअल और ट्रांससेक्सुअल है, आप इनका सामना कैसे करेंगे? Do not ever treat LGBTs as anything less than humans created in the image of God. और आप जो LGBT के लोग आपसे मिलते हैं, आप उन्हें बिल्कुल वैसे ही समझें जैसे परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूप समानता में बनाया है। That's उन्हें भी ऐसे very स्वीकार करें। important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। When you meet somebody जब आप किसी से मिलते हैं who's got a problem, जिसके पास ये समस्या है, don't act as if you're holier than them. ऐसा बर्ताव ना करें कि आप उनसे बहुत पवित्र हैं। That is one mistake the church has been doing. ये एक बड़ी गलती है जो कलीसिया अब तक करती आ रही थी। If Jesus were to address an LGBT person, यदि प्रभु यीशु मसीह को एक LGBT व्यक्ति के सामना करना होता, what would he do? आपको क्या लगता है वो क्या किया होता? There will be love available. वह प्रेम उपलब्ध कराता। He would not love his actions, वह उसके कर्मों को पसंद नहीं करता, but this person will feel comfortable in the presence of Jesus. लेकिन यह जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में एक हिम्मतता और एक आराम का एहसास करता। Prostitutes felt comfortable in the presence of Jesus. आप देखते हैं जब व्यभिचारिणी प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसे आराम का एहसास हुआ। Thieves and stealers and tax collectors and all kinds of simple people felt comfortable sitting at the feet of Jesus. चोर, डाकू, चुंगी लेने वाले नाना प्रकार के बुरे लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन्हें शांति और आराम का एहसास हुआ। You know who didn't feel comfortable in his presence? क्या आपको पता है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में किसको अच्छा नहीं लगा? The religious crowd. और जो धार्मिक लोग, Hold on to the truth, सत्य को थाम कर रखें, but don't be religious. लेकिन धार्मिक ना बने। Religion brings condemnation. और जो धार्मिकता है आप पर आरोप लेकर आती है, दंड लेकर आती है। Secondly, truth is not in conflict with love, but falsehood is in conflict with दूसरी love. बात देखते हैं, जो सत्य है उसका प्रेम के साथ संघर्ष नहीं है या विरोध नहीं है, परंतु जो झूठ है, Holding on to the truth doesn't mean that you lose the ability to love. सत्य को थाम कर रखने का मतलब ये नहीं कि आप प्रेम को गवा देते हैं। Just because you know the truth, that doesn't mean you have lost the capacity to love. आप सत्य को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम करने की क्षमता आपने गंवा दी है। Oh, I went to the ICPF camp. आप ऐसा बोलते हैं, मैंने ICPF के कैंप में गया, No, don't talk to me. आप मेरे साथ बात मत करो। You smell cigarette. सार- I can't stand cigarette smell. और मैं जो सिगरेट की जो दुर्गंध है, मैं I can सहन only नहीं कर stand anointing. सकता। मैं केवल अभिषेक के साथ खड़ा हो सकता In हूँ। 24 hours, you will be alone. 24 घंटे आप अकेले ही खड़े रहेंगे। You will be preaching in your bedroom. आप अपने बेडरूम में प्रचार करते You're रहेंगे। supposed to be the salt and the light of the world, right? आपको इस जगत की ज्योति और नमक बनना था। You want to be in the salt shaker, or you want to be in the dish? Poor salt shaker. You remain the salt shaker. आप नमक का वो जो डब्बा है जो आप इस्तेमाल करते हैं, आप वह बने रहेंगे। And it will be beautiful when it's poured out. और जब उसे डाला जाता है, बहुत अच्छी बात And है, it's mixed. उसे फिर मिलाया जाता The है salt disappears. और फिर नमक विलुप्त हो जाता है, The taste increases. स्वाद बढ़ जाता है। Truth is not in conflict with love. सत्य प्रेम के साथ विरोध में नहीं है। Now, don't get into technical details without preparation. बगैर तैयारी के आप तकनीकी बातों में ना, Don't stand in the document that every talk about gay marriage. आप ये ना बोले साथ में खड़े होकर के मैं सब लैंगिकों के विवाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। Actually, my pastor said, असल में मेरे पासवान ने कहा,
And then you give the pastor's phone number to the class. फिर आप Don't do that. अपने पासवान का फोन नंबर देते हैं। They'll all be WhatsApping him all bad words. Okay, so unless you're prepared, जब यदि आपने तैयारी नहीं की है, unless you have read the stuff about it and the real stuff about it, जब तक आपने सचमुच उसके बारे में किताबों को नहीं पढ़ा है, believe me one thing, विश्वास करें मैं जो बोल रहा हूँ उस पर, nobody wants to be so different from the society. ऐसा कोई भी नहीं है जो समाज से भिन्न दिखना चाहता है। Nobody wants to stand out just for the sake of standing out. केवल बाहर अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए कोई अकेले खड़ा रहना नहीं चाहता। But some of the experiences, in most cases, some of the experiences in their childhood or some personal moments have twisted their mind and they need help. लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो उनके बचपन में उन्होंने अनुभव किया हो या बाद में उनके साथ घटित हुआ हो, उस एक बात ने उनके सोच विचार करने के तरीके को बदल दिया है। Unless you are an expert in that, don't even try to help them in that area. तो जब तक आप उस विशेष जो विषय है उस पर आप महारत हासिल ना कर लें, आप बेहतर ना हो जाए, आप उनकी सहायता करने के लिए ना जाएं। Be friends with them, love them, lead them to somebody who is trained to help them. उनके साथ मित्रता करें, उनके साथ दोस्ती रखें और जिनको इसका ज्ञान है आप उसे उसके पास लेकर जाएं। Depend on the Holy Spirit because the fight is spiritual. पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें क्योंकि जो युद्ध है वो आत्मिक है। Our fight is not against flesh and blood. और हमारा जो युद्ध है मांस और लहू के विरुद्ध में नहीं Our है। fight is not against transvestites. हमारा जो युद्ध है वह समलैंगिकों के विरुद्ध में नहीं है। That's why it is of no use to have a demonstration against these people. इसलिए इन लोगों के विरुद्ध में प्रदर्शन करने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। But it's of much use if you kneel down and pray for them. लेकिन यदि आप घुटने में आकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं वह ज्यादा उपयोगी I होगा। want to close with this मैं समाप्त करना चाहूंगा prayer. इस प्रार्थना को। We have taught you many things. हमने आपको बहुत सी बातें सिखाई है I don't want to leave you without mentioning about prayer. और प्रार्थना के बारे में बताए बगैर मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। Just listen to this. ध्यानपूर्वक When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं go into your room, अपने कमरे में जाएं, close the door, अपने दरवाजे को बंद and करें, pray to your Heavenly Father, अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना who करें is unseen. जो अनदेखा जो दिखाई Then नहीं your देता, Father, who sees what is done in secret, will reward you. वो पिता जो रहस्य में क्या होता है उसे देखकर तुम्हें सबके सामने उसका प्रतिफल देगा। You live in an anti-Christian world. आप मसीही विरोधी दुनिया में जीते हैं। What is your solution? आपका समाधान क्या है? There are many things you can do, बहुत से काम आप चाहे तो कर सकते हैं, but pray. लेकिन प्रार्थना करें। Pray for the world. दुनिया के लिए प्रार्थना करें, Pray for the culture. संस्कृति के लिए प्रार्थना करें, Pray for the nation. अपने देश के लिए प्रार्थना करें। You live in an amoral campus. आप नीनैतिक कैंपस में जी रहे हैं, What is the solution? उसका समाधान क्या है? There are many things you can do, बहुत से कार्य जो आप कर सकते हैं, but pray. लेकिन प्रार्थना करें। Pray primarily प्रार्थना करें, प्राथमिकता से for प्रार्थना the करें। transformation of your campus. अपने कैंपस के रूपांतरण के लिए, Pray, परिवर्तन के लिए, pray for the science teacher who is promoting evolution. अपने विज्ञान के शिक्षक जो विकासवाद को बढ़ावा दे रहा है उसके लिए प्रार्थना करें। Pray for the friends अपने मित्र के लिए प्रार्थना करें who are persecuting you. जो आपको सता रहे हैं। Above all, pray for the nations. सारी बातों से बढ़कर अपने देश के लिए प्रार्थना करें। How to handle the LGBT issue. इस LGBT के जो मुद्दे हैं उसका सामना कैसे करना है। When you see somebody struggling, जब आप किसी को संघर्ष से होते हुए जाते हुए देखते make हैं, sure you pray for them. इस बात को पक्का कर ले कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। Go to your Heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएं। Who is He? कौन है वो? He is your Father. वो आपका पिता है। How many of you believe God is your Father? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर We आपका पिता है? complicate prayer, right? हम प्रार्थना को बहुत जटिल बना देते हैं। You need to have good language to pray. हमको ऐसा लगता है कि अच्छी भाषा होनी चाहिए प्रार्थना You के need to लिए। quote at least 2 verses when you're praying, कम से right? कम प्रार्थना के समय 2 आयत तो बोलना ही चाहिए। Sometimes we listen to prayers and it sounds like a Bible study. कई बार तो हम प्रार्थना सुनते हैं ऐसा लगता है मानो बाइबल का क्लास चालू हो गया है। Justification, sanctification and glorification all will be in one prayer. धर्मीकरण, शुद्धिकरण, महिमाकरण तीनों एक ही प्रार्थना है। Apostle Paul will be wondering in heaven, man, I couldn't pray like और that. ये पौलुस तो सोच रहा होगा स्वर्ग से देखकर, अरे ऐसी प्रार्थना तो मैं भी नहीं कर सकता। Talk to your Father in simple language. अपने पिता से सरल भाषा में वार्तालाप करें And talk to your Father in a normal tone. और अपने पिता से सामान्य मृदु स्वर में आप बात करें।
What do I mean by normal tone? एक मृदु स्वर का Of मतलब course, क्या है? in public prayer, when the Lord leads, there is a power. हाँ, सब कुछ In the words that come out. जब परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, बड़े-बड़े शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। But in your private moments, लेकिन आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में develop this habit of just talking to your Heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता से बस केवल यूं ही बातें करने की जो आदत है, आप उसको विकसित करें। Tell Him I love you. उनसे कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Make it a habit to tell your Heavenly Father that you are in love with Him. स्वर्गीय पिता को यह बताने का आप आदत डाल दें कि आप उनसे बार-बार कहें कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। If you're hurting, यदि आपको चोट पहुंचती है, what should you say? आप क्या कहेंगे? God bless Africa. परमेश्वर अफ्रीका को आशीष कर। When you're hurting, tell Him, Lord, I'm hurting. जब आपको चोट पहुंच रही है, आप कहें कि प्रभु मुझे चोट पहुंच रही, मैं दुखित हूँ। When you need money, जब आपको पैसों की आवश्यकता है, what will you tell your Father? आप क्या कहेंगे अपने पिता से? Lord, bless Gujarat. परमेश्वर गुजरात को आशीषित कर। Lord, I need some money. परमेश्वर मुझे पैसों की आवश्यकता है। In this anti-Christian world, इस मसीही विरोधी दुनिया में you have the most powerful weapon in your hands. आपके पास सबसे सामर्थी हथियार आपके हाथों में है। It's here on your knees. वो आपके घुटनों में है। When you kneel down and pray, जब आप घुटने में आकर प्रार्थना करते हैं, just keep it simple. इसे सरल बनाकर रखिए, Keep it straight. इसे बहुत ही सीधा बनाकर रखिए। Shall we take a few moments to pray? आइए कुछ क्षण हम Particularly pray for these issues. विशेष तौर पर इन 3 मुद्दों के लिए प्रार्थना करें। Lord, we live in a world that is so hostile, प्रभु, हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो हमारा दुश्मन है, so anti-Christian. मसीही विरोधी है, Pour out your Spirit upon the nations, O Lord. और अपनी आत्मा को इस देश पर तो उंडेल दे। Pray for your school, pray for your college. अपने विद्यालय के लिए, अपनी शालाओं के लिए प्रार्थना करें। Let there be a cultural transformation in होने your campus. पाए आपके विद्यालय में सांस्कृतिक रूपांतरण होने पाए। You know, in answer to our prayers, आपको पता है हमें प्रार्थनाओं के उत्तर में, I believe in your generation, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आपकी पीढ़ी में we will see a transformation in our campuses. हम अपने कैंपसेस में एक रूपांतरण को देखेंगे। Young men and women will get saved. जवान स्त्री और पुरुष उद्धार पाएंगे। Thirdly and finally, तीसरी और आखिरी बात, pray for our dear brothers and sisters who have an identity problem. जो हमारे प्रिय भाई और बहन जिनके पास अपनी पहचान की समस्या है, उनके लिए प्रार्थना करें। They don't know whether they are male or female. वो ये नहीं जानते कि वो स्त्री है या पुरुष है। God has created them male or female. परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया है। Now they are addressing the issue of eunuchs. और अब आप It's a देखते different हैं, thing. वो खोजों की समस्या एक दूसरा मुद्दा है, But they are also human beings. लेकिन वो भी मनुष्य है। May the Lord give us the grace to love them. परमेश्वर को इतना अनुग्रह दे कि हम उससे प्रेम कर पाएं। But let us hold on to the truth लेकिन आइए हम सत्य को थाम कर रखें, and approach our Heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएं Pray for the campus. और अपने कैंपस के लिए प्रार्थना करें, Pray for the nations. अपने देश के लिए प्रार्थना करें, Pray for those who are around us. और जो हमारे साथ हैं उनके लिए प्रार्थना करें, So that there will be a cultural change. एक सांस्कृतिक परिवर्तन आने The पाए। kingdom of God परमेश्वर का राज्य is a place of victory. एक जय का स्थान है। The kingdom of God is invading the nations. परमेश्वर का जो राज्य है वो देशों के अंदर प्रवेश कर रहा है। Just like the Roman Empire was defeated in love, आप देख सकते हैं रोमी साम्राज्य जिसको प्रेम के द्वारा पराजित किया गया, just like the Reformation built the nations, आप देख सकते हैं बड़ा परिवर्तन जिसने एक देश का स्थापना किया। in this 21st century, इस 21वीं शताब्दी में let us believe आइए हम इस बात पर विश्वास that करें the mighty anointing of the Holy Spirit कि परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक, and the power of the Word of God, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, a handful of young men and women और जो थोड़े से मुट्ठी भर जवान स्त्री और पुरुष हैं, will transform cultures. वह संस्कृतियों को रूपांतरित कर देंगे। We want a biblical culture. हम एक बाइबल आधारित संस्कृति को देखना चाहते हैं। We want not a global village, हम एक विश्वक गांव तैयार करना नहीं चाहते, but biblical village, लेकिन हम एक बाइबल आधारित गांव बनाना चाहते where हैं, the media will be full of the gospel. और जहां पर जो मीडिया है, जो सूचना का जो स्रोत है, वो बाइबल आधारित होने पाए। Pray for journalists to get saved.
हम ऐसा प्रार्थना करें कि पत्रकार उद्धार पाने Pray पाए, for politicians to get saved. राजनीतिक शास्त्रियों के लिए प्रार्थना करें कि वो उद्धार पाने Pray पाए, for educators to be saved. शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें कि वो उद्धार पाने पाए, Pray for believers to get into civil service. विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वो सिविल सर्विसेज में जाने पाए, Pray for believers to get into politics. विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वो राजनीति में जाने पाए। How many of you believe that we can have MPs and MLAs who are worshipping the living God? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने वाले हमारे पास एमपी और एमएलएस होंगे? Pray that our prime ministers, the presidents, would hear the gospel of Jesus. प्रार्थना करें हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री परमेश्वर के वचनों को सुनने पाए। We need a cultural change. हमें सांस्कृतिक रूपांतरण चाहिए। Nothing is impossible with God. कुछ भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं Creator of the है। heavens and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, He is the Lord of the nations. वह देशों का प्रधान है, प्रभु है। Let's all rise and pray. आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रार्थना Lift your करें। hands to the heavens. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। Take a moment to pray to the एक Lord. घड़ी निकालें और परमेश्वर से प्रार्थना Lord, I करें। want to see a cultural change. प्रार्थना करें, मैं सांस्कृतिक परिवर्तन देखना चाहता I हूँ। want to see this nation change. मैं चाहता हूँ इस देश को बदलता हुआ देखना I चाहता want to हूँ। see my campuses change. मैं चाहता हूँ कि बड़े विद्यालयों में परिवर्तन आने I पाए। want to see the society change. मैं चाहता हूँ कि समाज परिवर्तित होने पाए। Pray, pray, pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let's believe that Jesus is the Lord of India. Jesus is the Lord of India. आइए हम आपसे प्रार्थना करें। Jesus is the Lord of New Delhi. न्यू दिल्ली भारत का प्रभु है। Jesus is the Lord from Kashmir to Kanyakumari. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का ईश्वर प्रभु है। Jesus is the Lord of the nations. प्रभु यीशु राष्ट्रों का पिता है। You know where it begins? आपको पता है इसकी शुरुआत कहाँ It होती है? begins from you. ये आपसे इसकी शुरुआत होती है। If He is your Lord, यदि वो आपका प्रभु है, He will be the Lord of your house. वो आपके घर का प्रभु होगा। He will be the Lord of your campus. वो आपके कैंपस का प्रभु होगा। He will be the Lord of the nations. वो आपके राष्ट्र का पिता होगा। Let's make it personal. आइए प्रार्थना करें। Let's make it personal. आइए इसे व्यक्तिगत बनाएं। He is my Lord. मेरा प्रभु है। He is my Lord. He has risen from the dead, and He is my Lord. All my knees shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is my Lord. He is my Lord. He has risen from the dead, and He is my Lord. All my knees shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is Lord. There are many kings, बहुत से राजा हैं, but there is only one King of Kings. लेकिन केवल एक राजाओं का राजा है। His name is उसका नाम है
There are many lords, बहुत से प्रभु हैं, but there is only one Lord of lords. लेकिन केवल एक ही प्रभुओं का प्रभु है। There are many communities, बहुत से समाज but हैं, there is only one kingdom, लेकिन केवल एक राज्य है, the kingdom of God. जो परमेश्वर का राज्य There है। are many cultures, बहुत सी संस्कृति है, but there is only one church, केवल एक कलीसिया the है, church of the Jesus जो प्रभु Christ. यीशु मसीह कलीसिया है। Hallelujah. हालेलुया। Let's lift our hands and praise Him. अपने हाथों को ऊपर उठाएं, परमेश्वर की आराधना करें। As our eyes are closed, जब हमारी आंखें बंद हैं, no one looking around, please. कोई इधर ना देखे। I want to pray for you for something particular. मैं एक विशेष प्रार्थना के लिए आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। You know, Satan is attacking young minds जवानों के मन, उनके दिमाग पर शैतान आक्रमण कर रहा है, in the area of sexual identity. विशेष तौर पर उनके लैंगिक पहचान के क्षेत्र में। Kids are confused whether they are men, boys or girls. और जो जवान हैं इस बात से भ्रम में है, असमंजसता में है कि वो स्त्री है या पुरुष। So much of filth is being poured into their minds. दिमाग में कितनी गंदगी डाली जा रही है। There is a struggle for identity. उनकी पहचान के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। Jesus came to set prisoners free. प्रभु यीशु मसीह बंदियों को आजाद करने के लिए आया। If any one of you is struggling in that area, यदि आप उस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, you don't have to come forward, आपको आगे नहीं आना है, but pray right now. Let's pray लेकिन together. अभी इसी वक्त हम प्रार्थना करें। Lord, I want my identity to be safe in प्रभु your मैं चाहता हूँ कि arms. मैं जो पहचान है वो तेरे हाथों में सुरक्षित रहने पाए। When temptations come, जब परीक्षाएं आती है, give me the strength to resist it. मुझे सामर्थ्य दे कि मैं उसे रोक नहीं पाऊँ। If you created me as a boy, I'm going to live as a man. तूने मुझे पुरुष के रूप में, लड़की के रूप में बनाया, मैं लड़की के समान जीऊंगा। If you created me as a girl, I'm going to live as a woman. ये तूने मुझे लड़की के रूप में बनाया है, मैं लड़की के समान जीऊंगी। Lord, remove all confusion from your children. परमेश्वर अपने बच्चों के अंदर से सारी असमंजसताओं को Father, निकाल फेंक। I commit these precious lives in your पिता hands. के अनमोल जीवनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। Let their identity be safe in your mighty हमें hands, O पाए कि Lord. उनकी पहचान तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। I pray that the Holy Spirit प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा, would give them. I pray that the Holy Spirit would give them मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा उन्हें देने पाए, confidence हिम्मत देने पाए, and strength सामर्थ देने पाए, to resist all evil, कि शैतान बुराई की बातों को अपने से दूर रख to पाए, resist all temptations, सारे परीक्षाओं को दूर रखने पाए, and stay in the identity in Jesus और Christ. मसीह यीशु की पहचान पे स्थिर रहे। Let's lift our hands to the आइए heavens. अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रार्थना करें। Let's lift our hands to the heavens. अपने हाथों को ऊपर उठाएं। He's my Lord. He's my Lord. He has risen from the dead, and He's my Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yes, my knee shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is Lord. Continue in the strength of the Lord. प्रभु की सामर्थ में आप आगे बढ़ते रहें, Continue in prayer. प्रार्थना में आगे बढ़ते रहें, Continue in the truth. सत्य में आगे बढ़ते रहें, Continue in the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़ते रहें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। And your Heavenly Father आपका स्वर्गीय पिता
He's your father. वो आपका पिता है, Talk to him. उससे बातें करें, Tell him everything. सब कुछ उसे बताएं। Amen. आमेन। Amen. Maybe sit. Now we'll proceed for photo session. So we'll all be going out. You can disperse now. We'll be having the photo session followed by lunch. Photo session is here? No. Outside. Okay. You can all disperse the photo session. I will tell you whether next is lunch or any next session. Okay, you all can proceed.